present here. It gives me immense pleasure to welcome everyone on the occasion of our school's first alumni meet. आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर, स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर. It gives me immense pleasure to welcome you all here. A day like today is very important for us, as it provides us the opportunity to meet with the distinguished members of 18 Model family after a long time, as well as provides them a chance to meet each other. It also enables the alumni to notice the changes and developments happened in the campus then and now. Also, I wish to express my gratitude towards each and everyone present here for sparing some time to be with all of us today. We know that it takes a lot to take some time out of your busy schedule and come over. I believe that the experiences which you will take home today will be worth the time you all have spared. I would also like to take this opportunity to appreciate the efforts made by you for the development of the school and the students as well, justifying the years spent by you at this esteemed institution. We hope that you will like the attempt made for this great reunion. Let's usher this moment with some musical notes. Now our students will present a welcome song for you all. Ma'am, we are honored to have you here, ma'am. Thank you so much for your presence.
I would also like to welcome our chief guest, Mrs. Sunita Puri. She passed out from our school in the year 1977. After completing her post-graduation in economics from Punjab University, she joined Indian Revenue Services in 1983. In the year 2021, she superannuated as Principal Chief Commissioner of Income Tax, Northwest Region, Chandigarh. Currently, she is an independent external monitor of Sikkim University. Also, she is working as a voluntary teacher with an NGO engaged in teaching of rural children. We are honored to have you here, ma'am, today, and I would request Principal Ma'am to please formally welcome our chief guest. Good morning to one and all present here. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here today on the occasion of our first alumni meet. I am extremely privileged to have amongst us our chief guest, Mrs. Sunita Puri, IRS from batch 1977. Thank you so much, ma'am, for coming. Our presence, your presence has made our school even more special today. A warm welcome to all our officers of the education department who have found time to come here, especially Mrs. Nimal Sharma. Presently, she is Deputy District Education Officer, and all the ex-officers of the education department who are here today. And we welcome and celebrate you all. And I must not forget to mention the ex-students who are a part of our alumni meet today. क्योंकि आप हैं तो हम हैं. I will now like to apprise you all about the recent strides of progress that we have made in the recent years. First of all is the title PM Shri that you all must be noticing that we have got. It was not easy to get it, and for that I am extremely thankful and grateful to all my predecessors who have worked hard and put our school on the road to progress, and because of that cumulative effect, we have got this title of PM Shri. Now I will just like to give you a little background about this. It was in the year 2022 that a centrally sponsored scheme was announced in which all the schools all over India had to compete and apply on a portal for this title. And in the first phase, around 6,500 schools were selected all over India, and it was the one and only school from Chandigarh to win this title. Thank you so much, and feel proud to know that we are all associated with it. Now these schools have been selected to help showcase the implementation of the National Education Policy 2020 and emerge as exemplary schools over a period of time. Here, the aim is to provide a safe and stimulating learning experience, offering a wide range of learning environment with excellent physical infrastructure. And I take this opportunity to express my gratitude and also the seniors who made it possible. Now, as you go around the school campus today, you will notice an outdoor science park, a maths park, a very detailed herbal garden, a kitchen garden, and a feather in our cap is the latest Dome Theatre, where we have tried to replicate
the Kapurthala model of the Dome Theatre, though on a smaller scale, but it gives our students an in-house experience and to help learn subjects about like physics and astronomy and geography and history. Now recently we have also added a traffic park to make our roads safe, not only for our students, but as we also prepare them for life. So safety is a major concern, and for that we have recently added a traffic park in the school. Now, when you take the round, love the old and appreciate the new. As they say, age is just a number. And all of us present here for today, let us think that we are 16 and forget our present age. Okay, 18 in 18 model, fine, that's good too. So revisit, relive your youth. It is a warm, sunny, wonderful winter afternoon, and the company is wonderful more, and we are going to make sure that the next few hours you have here will be fun. And please walk away with more memories about from your favorite alma mater. So with these words, I take your leave. Thank you so much for coming, and I hand over the mic to Bhumika now to carry on with today's program. Thank you so much once again. We are honored to have you. You are I think, the senior most one present in the hall today. Welcome, ma'am. Welcome again. Laughter is the best medicine, and we have got a prescription for non-stop giggles. So I invite the talented students on stage for a rib-tickling skit. बिखर गया हुड़ प्यार हवा दे विच बिखर गया सतवीं क्लास विच होना नहीं पास ਆਪਾਂ सतवीं क्लास विच मौजा ही मौजा सतवीं क्लास विच मौजा ही मौजा तीजा साल है मौजा ही मौजा सतवीं क्लास विच मौजा ही मौजा तीजा साल है मौजा ही मौजा हिंदी आई भैन जी मौजा ही मौजा सिर पे आ गई मौजा ही मौजा बस कर जो मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा क्या हो रहा है ये मौजा ही मौजा बस करो मौजा ही मौजा बदतमीजो मौजा ही मौजा बस करो अपनी आवाज का बस करो बदतमीजो जय माता दी मैडम जी जय हिंद। और कैसे हो बच्चों आप? मैं नोट हूँ जी। आप कैसे हो? मैं सूदा जी। और आप? अपनी काटो फुल्ला दे है जी। वो क्या होता है? काटो फुल्ला दे है जी। ग्लैरी गार्लैंड। The glare is on top of the flowers. अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब हम अटेंडेंस लेंगे। रोल नंबर 1 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। क्यों क्या हुआ उसे? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। रोल नंबर 2 ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। अब क्या हुआ उसे? ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ। रोल नंबर 3 ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। अब क्या हुआ उसे? जी रोल नंबर 3 ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫੇਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਫੇਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੋਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਲਾਂਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਫੇਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਕੁੱਟੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬੰਦ बदतमीज चुप करो। चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। मैडम जी साडी अटेंडेंस तो लाओ। साडी लाओ। हां मुझे पता है तुम्हारे में लगा दूंगी अटेंडेंस। चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। खाली स्थान भरेंगे। खाली स्थान भरेंगे। हाँ खाली स्थान भरेंगे। हो गया भाई वाक्य में एक जगह खाली होगी जिसको आपने भरना है। अच्छा अरे बेवकूफो आजकल सारी बेवकूफो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। अच्छा जी अच्छा सुनो ध्यान से। भारत डैश डैश का देश है
यहाँ पर सबसे ज्यादा डैश डैश पाए जाते हैं। मैडम जी ये डैश डैश की है जी? ये खाली स्थान है जिसको आपने भरना है। खाली स्थान इनू भरना जी। अच्छा। भारत डैश डैश का देश है, यहाँ पर डैश डैश पाए जाते हैं। सुनो मेरा जवाब सुनो तुम। भैन जी भारत ठगियां ठोरियां का देश है, यहाँ पर दंगे फसाद सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्लैपिंग। बैठो। चलो आप बताओ। मैडम जी मैं हाँ पूछो मैडम जी। भारत डैश डैश का देश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डैश डैश पाए जाते हैं। सुनो जी सुनो। भारत खान पीन वाले का देश है और इत्थे वेलण लोग ज्यादा पाए जाते हैं। बस 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 ऐसे बोलते हैं। बैठो। भैन जी देखो साडू मिलण गया ਤੁਹਾਡੇ सामने। चलो आप बताओ। मेरी बारी जी। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ मेरी बारी आनी सी। हाँ हाँ जी बताओ। मैनू नहीं जी आंदा। क्या बताओ जी? भारत डैश डैश का देश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डैश डैश पाए जाते हैं। भारत डैश डैश का देश है जी। उसके बाद क्या बोला? चुप करो। अब ये बोलना बंद करो अपना। भारत क्रिकेट प्लेयर का देश है ते चौके छक्के पाए जाते हैं। बदतमीज। नहीं नहीं। मेरा फर्ज बनता है मैं सही तो सही भैन जी एक बारी अच्छा बताओ। देखो सुनो भाई। भारत हिंदी वाली भैन जी का देश है, यहाँ पर पंजाबी वाले मास्टर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हो आप? मैडम शर्मा जी चुप करो। भैन जी सही दसो सही। बोलो। भारत पंजाबी चैनल वाला देश है, यहाँ पर मिस पूजा के गाने सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चे नहीं मार के चुप करो। भैन जी गुड़ती बहुत है। मैडम जी मेरी बारी नहीं आई। मैडम जी चलो आप बताओ। काल कितने प्रकार के होते हैं? चलो आप बताओ। मैडम जी मेरे तो पूछो। आप बताओ। मैडम जी की काल कितने प्रकार के होते हैं? काल मैडम जी मैनू तो दो ही काल का पता है। एक जी मिस का ते दूजा सत श्री अकाल। बदतमीज। सब उल्टा जवाब दे रहे हैं। सही तो सी मैडम सही नहीं भैन जी ऐਵੇਂ ना करे करो। चलो आप बताओ। मैं जी हाँ आपकी बारी। मैं मॉनिटर है। 2 मिनट है दसो। हाँ वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जी सुनो भाई। सुना देखो जनरल नॉलेज वाਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, अच्छा ਫਿਰ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। वो कैसे हो गए? ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਚਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਵਰਿਆ ਨਾਲ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਜਰਾ ਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੈਣਾ। मैंने पढ़ा ही नहीं है इस क्लास को। बड़ी बदतमीज क्लास है। ਬਾਏ। Expression of a joy and celebration. So, to celebrate this moment, our students are here with a wonderful presentation. तेरे हाथ माही वे गाना, हाथ माही वे गाना, शोरा बेरा भी बालड़िया, बालड़िया।
करता है जी तो जट्टा मैनू संग मारदी हाय तेरो तो नचने नू करता है जी तो जट्टा मैनू संग मारदी Form of claps motivate them a lot. So please a big round of applause for our performance. A poem is a picture painted with words. I feel privileged to hand over the mic to Mr. Ramesh Chand and request him to recite a poem composed by him. के इस आयोजन के भाव को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है अतीत का आनंद। जी हां, अतीत जिसके आयोजन हेतु हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वर्षों बाद भूले बिसरे स्वजनों के बीच मैंने अपने आप को पाया। उत्सुक था बहुत जब मुझे मेरे विद्यालय से सस्नेह न्योता आया। यादों का सुमधुर साया सच में मेरे मन मस्तिष्क को बहुत भाया। सच कहूं तो पुराने चेहरों के साहचर्य से मैं तो फूला ना समाया। विद्यालय पहुंचा, कल्पित को मैंने वास्तविकता के धरातल पर पाया। विद्यालय पहुंचा, कल्पित को मैंने वास्तविकता के धरातल पर पाया। पुराने संबंधों को तलाशती निगाहें, पुराने संबंधों को तलाशती निगाहें, निगाहों को वो नूर नजर आया। गुजरे वक्त की सुनहरी यादों को जिंदा कराता यहाँ हर कोना भाया। गुजरे वक्त की यादों को जिंदा कराता इस विद्यालय का हर कोना भाया। चेहरों में वक्त ने परिवर्तन लाया, चेहरों में वक्त ने परिवर्तन लाया, पर सब में वो अतीत नजर आया। बात वक्त की है, बात वक्त की है। वक्त था जब दिनचर्या मिलकर करते थे व्यतीत। वक्त था जब दिनचर्या मिलकर करते थे व्यतीत। आज ये भी वक्त है जब हम उन यादों को करते हैं, उन यादों को कहते हैं अपना अतीत। इसी अतीत को वर्तमान आईने में, इसी अतीत को वर्तमान आईने में देखने हेतु आज एकत्रित है हम। यादें धुंधली सी जरूर है, यादें धुंधली सी जरूर है, पर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं है कम। यादें धुंधली सी जरूर है, पर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं है कम। अविस्मरणीय दिवस है आज, अविस्मरणीय दिवस है आज। परमात्मा हम सबको सुख का संसार दे। अविस्मरणीय दिवस है आज, परमात्मा हम सबको सुख का संसार दे। सफलता, आरोग्यता, दीर्घायु का वरदान देकर, सफलता, आरोग्यता,
दीर्घायु का वरदान देकर सबको खुशियां अपार दे, सबको खुशियां अपार दे। धन्यवाद। Now I request our chief guest. Now I request our chief guest, Mrs. Sunita Puri, to please share her thoughts with us. थोड़ा सा मुस्कुरा रही हूँ because that's what I said कि ये punishment है चीफ गेस्ट बनने की, ये खड़े होकर बोलना पड़ेगा। Anyway, I am blessed, I am honored. Thank you, madam. And मेरे पुराने टीचर्स भी हैं, मेरी बैचमेट्स भी हैं, आई थिंक 1-2 सीनियर बैच के भी लोगों ने कंफर्म किया था। आई वंडर 70 बैच के साइंस टीचर मैडम आई हैं, यू आर देयर, यू मेंशन यू विल बी कमिंग टू, यस। हाँ, तो यू डिड रेज हैंड जब इन्होंने पूछा था पुराने बैच के, और बाद में थैंक यू। सो आई थिंक 70 के बाद हम ही हैं 77 बैच के। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, यू कैन सी, एंड इट वॉज अ सरप्राइज कि मुझे इन्होंने चीफ गेस्ट डिक्लेयर कर दिया जहाँ आकर। सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद दिस स्पीच एंड यस, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम हैप्पी टू कम हियर। और जब भी हम 77 बैच के लोग इकट्ठे गर्ल्स कहते वो दिल करता है, ज़्यादा गर्ल्स ही मुँह से निकलता है, लेडीज नहीं निकलता, गर्ल्स ही निकलता है। तो कल भी मैं कहीं ग्रुप में डाल रही थी कि सम गर्ल्स ऑफ माई बैच, देन आई फेल्ट कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो एनीवे, सो हम लोग यही कहते थे कि स्कूल जाने को दिल करता है, पर देख कर ये लगता था गार्ड खड़ा हुआ है, पूछेंगे क्यों आ रहे हो। एंड जब हमें पता चला कि गेट टुगेदर हुआ, वी फेल्ट सो एक्साइटेड। एंड और दुख ये लग रहा है कि इतने साल क्यों नहीं आए, मतलब किसी ने मना नहीं करना था हमें, आई एम श्योर। पर ये तो कुछ तो हम उलझे रहते हैं अपनी, जब भी आपकी पढ़ाई खत्म होती है, यू आर इनटू करियर, देन करियर को शादी, बच्चे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी मैं रिटायर हो चुकी हूँ, पर मैं कुछ काम करती हूँ जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड गिव बैक टू सोसाइटी। हाँ, इस ऑडिटोरियम में खड़े होकर बैठकर ये लग रहा था यहाँ हम भी प्रैक्टिस करते थे, कभी वो डिबेट्स के लिए कभी सिलेक्ट होते थे, कभी नहीं भी होते थे, तो दुख भी लगता था कि वो हम तो सिलेक्ट नहीं हुए, दैट टाइप। फिर पीछे एक कैंटीन होती थी, उसके वो ब्रेड पकौड़े और समोसे, सो देन यस यस ऑफ कोर्स, हम तो खाने जाते थे स्पेशली वहाँ पे। तो और फिर हमारे एक बंडल की है कि नहीं है। सो अच्छा, फिर तब वो शुरू हुआ था मिड डे मील का था, हमारी क्लास के साथ में ही 2 रूम्स को हमें इधर मूव कर दिया था। तो मैथ्स टीचर, लाइक आई रिमेंबर अ फ्यू टीचर्स, सबको नहीं, आई डोंट नो, गुगलानी मैम होते थे हमारे एक, देन सचदेवा मैम ने हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई, वासुदेवा मैम संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी पर मेरी फ्रेंड्स ने पढ़ी। एंड तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस स्कूल की, और मेरे लिए ये स्कूल एक टर्निंग पॉइंट था। मैं ऑनेस्ट, आई एम बीइंग, व्हेन आई हैव बीन आस्क्ड टू शेयर माय थॉट्स, तो आई एम जस्ट टेलिंग, बस 2 मिनट लूँगी, आई विल नॉट बी स्पीकिंग मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस स्कूल की, मेरा ये टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, खासतौर पे सचदेवा मैम का, उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई। और उस वक्त क्या था, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, मेरे मदर भी टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में ही थे, एंड वेरी ऑर्डिनरी फैमिली से, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक। तो जब हम सेक्टर 23 स्कूल से यहाँ आए थे, 9th, 10th, 11th, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हायर मैथ हमें बताया गया जी आपने पढ़ना है। मैं वैसे मेडिकल में जाना चाहती थी, उन दिनों लोग कहते थे लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बनती, मैच ढूंढना मुश्किल हो जाता है, थिंग हमारी फैमिली में इस तरह के ख्याल थे उनके। तो एनीवे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स हमने ले लिया। मैथ्स की टीचर मेरे साथ ही बैठी हुई हैं वहाँ पे इंसिडेंटली। तो सचदेवा मैम ने इकोनॉमिक्स, मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया तब, थिंकिंग की भी आगे चलो भी वो नहीं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। फिर मुझे उन सब ने कन्विंस किया कि आपको अलग से तो कोई पढ़ाएगा नहीं, तो आप हिंदी मीडियम में ले लीजिए, मैथ्स इंग्लिश में करिए, बाकी तो हिंदी में कर लीजिए। तो सचदेवा मैम ने ना मुझे बहुत इनकरेज किया। मैं जब भी कोई अटेम्प्ट करती थी वो कि तुम बहुत अच्छा कर लिखते हो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तो ऐसा मेरा एक अपने बारे में ख्याल हुआ कि येस आई कैन डू इट टाइप। तो वो कहाँ भी जहाँ भी है, मैं सबको यही नरेट करती हूँ, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वो सचदेवा मैम थी, जिन्होंने मेरे काम को बहुत ही सराहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। जब मैं अटेम्प्ट करती थी
तो उससे धीरे धीरे फिर मैंने MA भी इकोनॉमिक्स में किया, BA में इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट था, MA भी इकोनॉमिक्स में किया, और जब मैं सिविल सर्विस में क्वालिफाई की, ऑनेस्टली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स ने मुझे आगे बढ़ाया। तो जो होते हैं ना मार्क्स आते तो आपके किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए, तो इकोनॉमिक्स में ही आए। तो आई एम ग्रेटफुल टू द स्कूल, दैट इज़ वन। सेकेंड, मैं ये भी सोच रही थी, अब स्कूल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैडम ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो अब हम कुछ लोग इकट्ठे भी हो गए हैं, एक ग्रुप भी बन गया है, तो वी शुड आई थिंक कंटिन्यू विद दिस एंड सी हम क्या कर सकते हैं स्कूल के लिए बाय वे ऑफ, अगर कोई बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट स्कूल, आई डोंट थिंक हम डोनेशंस दे सकते हैं, पर हम अपना एक फंड सेटअप करके एल बनाए, देन वी कैन हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स, और कोई पढ़ाना चाहता है पढ़ा भी सकते हैं। ये इट इज़ अप टू मैडम, we if you all agree then we can continue with the group जो फॉर्म हुआ उसमें यंगस्टर्स को मैं कहूँगी कि लीडर बने, and we will be there to guide and let us do something for the school, because स्कूल ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और सबसे बड़ी बात है हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है। I am so happy to see girls जो मेरी बेटी की एज की हैं, you know, see them cheering and all. So it's very nice. I mean, I'm really, really grateful and I'm overwhelmed. I cannot say more. Thank you so much. This has made us nostalgic. I feel like writing to my school for an alumni meet. I request Principal Ma'am to please present a token of remembrance to our chief guest. Wait, ma'am. Wait, one more. Thank you, ma'am. For anyone present in the hall who wants to share their thoughts, their experiences, their feelings, please, you can just stand up and we'll get the mic to you. Won't take much of your time. Good afternoon, everyone present here. I am Seema. Now I am Seema Grover. Before marriage, I was Seema Babbar. तो मेरा फेस शायद फेमिलियर होगा, अभी 77 बैच वालों ने कहा कि आपका फेस फेमिलियर है। आई यूज टू परफॉर्म अ लॉट, आई हैव परफॉर्म्ड मैनी ड्रामाज हियर इन दिस स्टेज, देन डिबेट, डेक्लामेशन, आई वाज हॉकी प्लेयर, देन आई वाज हैविंग NCC, मिस गुगलानी, है ना, एट माई टाइम मिसेस सोडी was our principal, then he was replaced by Miss Kapoor. I remember Mrs. Joginder Sandhu, Joginder Moti, then Mrs. Rekhi, Mrs. Nargis, Mrs. Urmil Gupta, who was my class teacher. So हम लोग समोसे बहुत खाए हैं। वाइट साड़ी में आंटी होती थी कैंटीन में। At that time 25 पैसे का एक समोसा होता, तो मुझे बहुत सुबह सुबह बनाती थी, और हमारा क्लासरूम थोड़े टाइम के लिए ऊपर हॉल में शिफ्ट हुआ था। I passed out my 10th in the year 1982. If anyone that batch. Okay. हमारी एक बैचमेट होती थी अरुणा, शी वॉज नेशनल प्लेयर, अभी भी आई थिंक वो कहीं है। तो बास्केटबॉल में वो और हम मिलके खूब धमाल मचाते। मेरा क्लासरूम बिल्कुल ग्राउंड के सामने। बास्केटबॉल प्लेयर अरुणा, yeah. So I'm Ranju, and we were having that basketball team, and Manjinder Ranu madam was our coach, and we won several trophies for this school. And Anupama, Poonam, they were there, and I'm in touch. They were my, Poonam was I think your classmate, and yeah, she was one. Oh, okay. So Anupama was my classmate, and we were all like, we had a wonderful basketball team, and we won several trophies. I'm 1983 pass out, and I'm Ranju Bansal now, and I'm a professor at Punjab University in Department of Pharmaceutical Sciences at present, and I'm really feeling so nostalgic coming here, and I just want to see that basketball court. And I was also in 10th school topper, and I was placed 7th or 8th overall in Chandigarh. So really I'm having our house was, my two sisters are also here. So in fact we were 4 sisters.
all studied from this school. 2 sisters are here. They are 1976 and 79 pass out. So I'm youngest of all those. And our house is also very nearby. So we used to come, वो जो बाउंड्री वॉल है उसको टाप के और उसके लिए हाँ जी और हमने स्कूल का मेन गेट तो कभी देखा ही नहीं। हाँ वहीं से और बहुत हमने नहीं वैसे भी यहाँ पर इधर तो दीवार ही नहीं थी, दीवार ही नहीं थी, हम तो ऐसी वो दीवार टूटी हुई थी उसको बार-बार बाद में इधर इतनी बड़ी दीवार नहीं थी। हाँ तो उसके कारण हमने कई बार ग्राउंड बहुत साफ किए हैं कि पनिशमेंट बट रियली but we are so thankful to you for inviting us and we could manage because of that group. I think ma'am you have created, so thank you so much to all of you. I'm really thankful to Mrs. Manjeet who has organized and who has put so many efforts in making this event a successful one. Thank you once again. Seema, please introduce your present posting also. You have not told us. Now I am working as principal in one of the government schools of Chandigarh. I joined education department in the year 1990. So it's been almost 34 years in the education department. Before that, I worked as lecturer commerce. Most of my time was in government model senior secondary school sector 35. वो मुझे अभी भी याद है जिस दिन सारा दिन बैठना पड़ गया ना मुझे क्लास में, मैं सारी तरफ ग्राउंड की तरफ ही देखती रहती थी कि कब प्लेयर्स आए और कब मैं बाहर जाऊं। हमारी स्पोर्ट्स टीचर होती थी मिसेस चौधरी आई थी, आई नो चौधरी फर्स्ट नेम। हाँ और एक वो दूसरे वाले भी नहीं वो चौधरी मैम जो यस तो वो सारा टाइम हम लोग बाहर रहते थे कि देखना कि फिर म्यूजिक टीचर ने हमें बुला लेना कि ग्रुप सॉन्ग तैयार करना है, फिर हम स्टेज पे। तो जिस दिन सारा दिन मुझे क्लासरूम में बैठना पड़ता था मुझे वो पनिशमेंट लगती थी। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज and really happy to come here as a member of Illuminate. Thank you. Thank you. Thank you so much. Due to time constraint, please keep it precise. आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया एवं मेरे सम्मानित शिक्षक बंधु एवं स्टाफ का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस आयोजन में हमें सम्मिलित होने का सुअवसर दिया। मुझे यहाँ सितंबर 1987 में आने का अवसर मिला। मैं चंडीगढ़ का स्कूल लेवल का सबसे पहला PhD था और सबसे पहला संस्कृत का लेक्चरर था और सबसे पहला चंडीगढ़ रीजन का हिंदी और संस्कृत का AHE था, जो कि उस समय HE दिल्ली में होते थे और AHE था। और इस स्टेज पर बैठकर देवा में नमो हम पूरा खोला करते थे, जो कॉपी मिस हो जाती थी रातों रात बैठे रहते थे। मैं इस विद्यालय में सबसे ज़्यादा 11 साल रहा और मेरे विद्यार्थी जो रूबी पुरी, मोनिका मनोचा, ज्योति, ममता 1994 में 0+1% मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में लेकर सर्वाधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण हुए थे। और तब से मुझे हौसला मिला कि हर साल मेरे बच्चे 100 में से 100 नंबर लाएं। जब मुझे मनमोहन सिंह जी ने कहा आप 18 सेक्टर में जाएं और 10 बच्चों को तैयार करें, मैं यहाँ आया। यहाँ +1 में 32 लड़कियाँ तैयार हुई और अगले साल मेरे प्रिय साथियों 80 लड़कियाँ तैयार हुई। और मैंने इस स्कूल में रहते हुए उन बच्चों का जिनका कि 22,17,315 रोल नंबर था,
खूबी पूरी लड़की आगे जाकर उन्होंने मेरे विषय में पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD की। इस विद्यालय में 3 कार्य मेरे रहते हुए सबसे पहले हुए। सबसे पहला, नेशनल गेम जब हुआ करती थी 18 सेक्टर से सुबह। नंबर 2, वोकेशनल कोर्सेज जब शुरू हुए 18 सेक्टर से शुरू हुए, और उस समय स्टेनोग्राफी की भी क्लास लगती थी, जो +2 करके जिन्होंने स्टेनोग्राफी की वाइस प्रिंसिपल है। इसके साथ साथ मैं इस विद्यालय से बहुत ज़्यादा अनुभव लेके गया, और मुझे चंडीगढ़ के 4 स्कूलों में ही काम करने का मौका मिला। 35 मॉडल, 20 मॉडल, 18 मॉडल। उस समय के जो मेरे 4 प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। RS दत्त जो 23 में थे, मैंने उनको कहा आपने मुझे 7 पीरियड दे दिए और 1 खाली होता, उसमें एडजस्टमेंट हो जाती, कहा जी उसको भी मैं रेगुलर लगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। इतना मुझे सख्त बनाया कि मैं फिर कार्य से नहीं डरा। मीरा सिकंद मैडम, उस मैडम ने हमें इतना रुलाया कि हम जिंदगी भर न रोए, और इतना सिखाया कि हमने जिंदगी भर कुछ भी नहीं सीखा, बहुत कुछ सिखाया। इस स्कूल में जब मैं आया, के देवा मैडम थी। देवा मैडम जब कोई चपरासी थोड़ा विलम्ब देर से आता, झाड़ू लेकर के अपना ऑफिस ही नहीं बरामदा भी साफ कर लेती, अपना काम स्वयं करना। और इसके बाद राजेश चौधरी मैडम आई। राजेश चौधरी मैडम ने एक बार किसी की कहा सुनी हो गई, ऑफिस में बुलाया, कहा जोर से बोलो, धीरे बोलो, मीनिंग तो वही निकलेगा, इसलिए धीरे ही बोलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आज के जो भी शिक्षक बंधु हैं वो ईमानदारी से काम करें, उन पर विश्वास होगा। मैं आप लोगों के सामने 2 उदाहरण दूंगा। जब मुझे इंटरव्यू एक्सपर्ट बनाया गया, मनमोहन सिंह जी को मैंने कहा मेरा भाई इंटरव्यू दे रहा है, सगा भाई का, कोई बात नहीं बैठो आप, और मैं उस इंटरव्यू में बैठा। ऐसा ईमानदारी का विश्वास था। आज भी CBSE बोर्ड में मेरी 18 सेक्टर में ड्यूटी लगी ऑब्जर्वर की। मैंने कहा मेरा स्कूल है, मैं कैसे जाऊं? कहा कि आप जाओ। क्यों? ईमानदारी से काम किया, उन्होंने विश्वास में मुझे लिया, और आज भी मैं 80 साल की उम्र में BA क्लास भी पढ़ा रहा हूँ और CBSE कार्यरत हूँ, और मैं 20 किताबें लिख चुका हूँ बच्चों को संस्कार देने वाली। जिसको भी चाहिए मुफ्त में मैं दूंगा। एक किताब मेरी अब गाजियाबाद समदर्शी प्रकाशन से छप रही है, रमेश जी इस बात को जानते हैं। और मैंने 20 किताबों में से 5 किताबें जो संस्कृत की पोएम की भी हैं और उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, और बच्चों को संस्कार देने वाली भी बातें मैंने उसमें कही हैं। आजकल की बहुओं के लिए मैं 2 लाइन जरूर कहूँगा। आजकल की बहुएं क्या हैं? सासू से सासू माँ मित्रों, सबसे पहले तो सासू माँ करती थी ना, फिर सासू माँ। सासू से सासू माँ मित्रों, और वही मम्मी बना आई। ससुर पिता तो जेठ है भैया, ननद भी दीदी कहलाई। चाचा मामा अंकल चाची मांटी आई हाय हुई, छोड़ा पल्ला लोकलाज की, नंगे नाच की मौज हुई। कटिंग एक सी कपड़े एक से, देख के कौन है फरमाया, देखे जो दिन बीत गए हैं ये कैसा नहीं। ये मेरे पता ही पता आप सब लोगों का एक बार मैं मैं यहाँ पे वोकेशनल कोर्स LIC वोकेशनल कोर्स किया था। 93 पास आउट हूँ, और यहाँ सेक्टर 17 में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। और उस समय वाला टाइम एकदम ऐसे लग रहा था जैसे इतना टाइम निकला ही नहीं है, 20-25 साल निकले ही नहीं है। आज का दिन वही 93 वाला टाइम याद आ गया। तो उस समय भी एक सॉन्ग बोलती होती थी, वो सॉन्ग सबको देख कर याद आ गया। बस उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है।
आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Good morning everyone. I am Dr. Simarpreet Kaur, working as a professor in Baba Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. So I am 1995 pass out, non-medical C-section. So I remember Deva ma'am was there as a principal that time, and Seema ma'am used to teach us chemistry. Firstly I took here bio because my mother wanted me to be a doctor, but I became a doctor of electronics basically. So I joined A section first. Firstly, I joined 35 model, but my friend was having lesser number, so she didn't got admission there. Then I joined 18 model here. So I was in A section, and I remember during the first day of our school, I had bio ma'am. I don't remember her name. She took her to the सुदेश कालरा, वो पर्स उठाई रखते थे मैम, या नहीं सुदेश कालरा, उषा मैम, फिजिक्स I don't remember. Chemistry Seema ma'am is there. She was very beautiful. Maybe me or Ravinder or Shrinder. अच्छा, okay ma'am, I don't remember. बहुत साल हो गए है ना. I remember that I used to come late and I used to means हमें शायद पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाते थे, कई बार करेले नहीं किए और वो नेल्स चेक होते थे रोज, तब भी मैं बाहर हूँ. तो आई एम proud to be alumni of this school. So thank you so much for calling us after so many years. Thank you all. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम पारुल है. यहाँ की स्टूडेंट की जर्नी से लेकर आज तक मुझे लगता है वो डर से लेकर एक्साइटमेंट की जर्नी है. टीचर्स का डर, टाइम पे फटाफट पहुँचना है. एंड जैसे कोई मैम शेयर कर रहे थे कि अगर हम लेट हो जाते थे तो मुझे याद है मैं साइकिल से आया करती थी, और साइकिल वाला जो गेट है वो 5 मिनट लेट तक खुला रहता था मेन गेट से. तो फटाफट जो है वहाँ से एंट्री करनी. मेरी सिस्टर भी यहाँ पे थी, तो साथ साथ जो है कुछ टीचर्स भी अभी देखने को मिले, टीचर्स से इंटरेक्शन हुई. मेरे बैचमेट्स तो नहीं है, बट मुझे लगता है स्कूल ने बहुत सारा कुछ सिखाया है. एक जर्नी एक स्टूडेंट से यहाँ पे हमारे टाइम पे जो है 2008 बैच में जब मैं पास आउट हुई, उससे 2 साल पहले हमने एक यहाँ पे प्ले किया था. उस प्ले के ज़रिए हमने बहुत सारा कुछ, मुझे याद है उससे पहले मैं क्लास में ज़्यादा बोलती नहीं थी. प्ले के ज़रिए बहुत सारे कनेक्शंस, आपस में बात करने का, टीम बिल्डिंग, बॉन्डिंग, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, वो बहुत सारी, मुझे लगता है मेरी जर्नी वहाँ से अनफोल्ड होनी शुरू हुई. और आज की डेट में मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं साथ साथ अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ. बच्चों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे मैं स्कूल में भी आई थी, कि जो मैंने सीखा है I want to give it back to the school and also to the society. So thank you so much Principal Ma'am for this initiative. Really grateful to be here. Thank you. Like I would just like to talk about 2 great achievements I was blessed with when I joined 18 model. That was in 2010 I joined here. And the first great achievement was professionally. I joined here as a TGT Sanskrit in 2010. But with the blessings of Almighty and the good wishes of all of you, I was promoted as a lecturer of English. Manjeet ma'am knows that. So that is one great achievement I was blessed with professionally. And on personal level, I became a dadi here in the school when my grandson was born. So I owe these blessings to the school. And thank you so much ma'am for inviting us. Love you all and thank you so much. आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, इन सबको मेरा आदाब. और ख़ासकर बहुत से चेहरे इतने अच्छे बैठे हैं, बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं. सबसे पहले मैं नाम लूँगा सुमन मैडम का, और प्रभजोत मैडम बैठे हैं. मेरा कार्यकाल 2005 से 2010, सबसे छोटा कार्यकाल इसी स्कूल में रहा एज अ तबला इंस्ट्रक्टर. तो मुझे याद है जब मैं यहाँ स्कूल में आया, मेरे सीनियर जो लेक्चर मेरे साथ, जिनके साथ मैंने काम किया, मिस उपमा शर्मा रादर, तो राजेश मिन्हास मैडम थे. मैंने उनसे गुजारिश की कि म्यूज़िक रूम में ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड दे दीजिए. एंड शी वाज डन
कहती आज तक तो किसी ने ब्लैक बोर्ड नहीं मांगा, आपने ब्लैक बोर्ड कैसे मांगा? मैंने कहा जी ज़रूरत है, क्योंकि उपमा मैडम दिव्यांग होने के कारण ब्लैक बोर्ड पे लिखना पढ़ाना मुश्किल था। तो लेकिन ब्लैक बोर्ड का तो काम बहुत है संगीत में, ये तो प्योर साइंस है, फिजिक्स है, प्योर फिजिक्स है म्यूजिक। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड का इंतजाम करवाया, फिर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया। पहला बैच जो जब मैं आया था बहुत इंटेलिजेंट बैच था, बहुत ही इंटेलिजेंट बैच था वो। उसमें एक बच्ची ने म्यूज़िक में 99 हासिल किया और मेरिट सर्टिफिकेट उसको मिला था। उपमा मैडम शायद नाम बता पाएंगे उस लड़की का। ज्ञान के साथ लड़की होती थी, नहीं पूजा, हाँ पूजा, यस शी वाज पूजा। तो बहुत छोटा सा कार्यकाल मेरा रहा। मेरा सबसे लंबा कार्यकाल 35 मॉडल का है, 81 to 95। आफ्टर दैट 32 मॉडल 95 to 2005। आफ्टर दैट 18 मॉडल 2005 to 2010। अगेन 2010 to 2016 32 मॉडल। हम ये जो स्टेज बड़ी जानी पहचानी है, बीइंग इन म्यूजिक, यहाँ पे बहुत से कंपटीशन में बैठ कर हारमोनियम बजाया है बच्चों के साथ, तबला बजाया है। देवा मैडम, राजेश चौधरी मैडम और मिस कपूर भी थे जब मैंने ज्वाइन किया 81 में, सबसे पहले वही थे। तो ये सारा जो समागम मंजीत मैडम ने ऑर्गेनाइजर था, मंजीत मैडम, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतना अच्छा अवसर बना दिया है उन्होंने। और इसी अवसर के उपलक्ष्य में सिर्फ 2 ही लाइनें सुनाता हूँ आपको, जो शायद मुझे लगता है इस अवसर से मेल खाती हैं। और एक बड़ा अच्छा नाम और मैं लेना चाहूँगा। मेरे सामने कुंदबाला मैडम बैठे हैं और मुझे बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे, फिर बाद में प्रिंसिपल बन के यहीं से गए। और एक नाम मुझे और बहुत याद आता है स्कूल से, वो तेजिंदर मैडम फिजिक्स के। उनके जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया था एक हादसा हुआ तो बड़ा दुखदाई था, वो हादसा मेरे दिल पर बैठा है आज तक। तो 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। भूली बिसरे चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माने याद आए, भूली बिसरी चंद उम्मीद। थैंक यू। My regards to Honorable Principal, teachers and all the dignitaries present here. See, there are few times in life when you have lack of words for the right expression, and I'm feeling the same now. You know, I'm having goosebumps. So I'm 1989 batch pass out, and after coming to this premises after so many years is like a blessing to me. So my special thanks to all the beautiful people who have arranged this event. I'm so thankful to them. And for school, I'm indebted to this school, you know, whatever I have become as a human now. And I say that I'm really in debt, you know, for making me, rather, for most of my batchmates. I'm a lawyer now. I'm practicing in Supreme Court. And मैं स्कूल में आई ही इसलिए हूँ कि मैं स्कूल का वंदन कर सकूँ। इस स्कूल ने हमें बनाया है। Thank you so much to my all teachers. Mrs. Kapoor was principal that time. Mrs. Bakshi, Mrs. Saroj. I know every, you know, I have just been told that we have a shortage of time, but I remember every teacher of mine. And I'm so blessed. I'm so blessed. Thank you so much.
नमस्कार, मैं स्पेशली स्टेज तेज करके आई हूँ। स्टेज ने मैंने बहुत कुछ दिता है। मैं अज भी हुई हाँ, तो शायद उपर मैं मैनू आवाज़ तो ही पछाण जाएंगे भी मैं कौन हाँ। हाँ जी, पूजा पूजा भाटिया मैम की स्टूडेंट हूँ, और कुंदबला मैम भी और मैम भी, है ना। तो मेरी एक ही पहचान है, मैं वही गाना गाऊंगी। सबने स्कूल के लिए इतना अच्छा बोला है, कंगी मामा, है ना। और ये सच में मेरी पहचान रहा है गाना। यहाँ से पहले भी गाती थी, यहाँ वही बात आ गई, गिद्दा करना। थैंक यू। और मुझे यहाँ गिद्दे के साथ अवार्ड मिला था कोकिला का। और हमारा टैगोर तो हमारा घर था। राजेश मिन्हास मैम प्रिंसिपल थे। दूध कभी नहीं पिया, पर उनके टाइम में दूध और बॉर्नविटा हमने यहाँ बैठ के पिया है। बैठ के पिलाते थे कि गिद्दा करना है, ऐसा नहीं होना, डिग जानी है। मैं तो गाती थी, पर वो बॉर्नविटा और दूध बैठ के पिया उनके सामने। तो सबको लेट हो रहा है। हो कंगी बाबा ते दुखण मेरे वाल नी माए, कंगी बाबा ते दुखण मेरे वाल नी माए। हो मैं ते हो गईया हालो बेहाल नी माए, मैं ते हो गईया हालो बेहाल नी माए। हो कंगी बाबा ते दुखण मेरे वाल नी माए, हो कंगी बाबा ते दुखण मेरे वाल नी माए। हो चिरे वाला ते आया मैनू लैन नी माए, हो चिरे वाला ते आया मैनू लैन नी माए। ओ सोने लगदे, ओ सोने लगदे ने मैनू दे नैन नी माए, हो सोने लगदे ने मैनू दे नैन नी माए। हो कंगी बावा ते दुखण मेरे वाल नी माए। हो जद मैं आई ते हथी मेरे चूड़ियां माए, जद मैं आई ते हथी मेरे चूड़ियां माए। हो दिने लड़दा है, हो दिने लड़दा है ते राती गल्लां गूड़ियां माए। हो कंगी बावा ते दुखण मेरे वाल नी माए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये कॉन्फिडेंस, ये गाना मैंने यहीं सीखा, यहीं पाया। Memories we made today. To add some more melody to our memories, we have on stage the student of a school with the song Yaar Anmulle.
everyone for their presence. We hope that today you all will take a bunch of cherished memories with you. You inspire our students to achieve. I sincerely request you to like, share and follow our pages on Instagram and Facebook. And before you leave, please fill the visitors book kept outside. This will help us in keeping touch with you. Every beautiful thing comes to an end, but every end is also a new beginning. And this is the beginning of hope that all of us will meet again. दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है बात होगी कभी. चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी. So we humbly request you to join us for high tea. Thank you everyone for coming and spending your time. Outside, the high tea for you is arranged outside. Please join us.